Hi guys, I hope I'm audible to everyone. So just a quick check, is the screen visible and I'm audible to everyone so that we can start with today's session. So as you must have received your targets for this particular week, we are going to discuss questions related to past papers of chapter 1 and 2. So we will be wrapping up chapter 1 and 2 discussion in today's class, and next week onwards we will move with next set of chapters. So I hope everyone has completed chapter 1 and 2 videos. If not, try to wrap up all your videos of chapter 1 and 2. In case you're not attending it live today and you're just watching the recordings later on, just make sure to complete all the past papers that are mentioned in the recent summary list. We have uploaded recent summary list which has questions from 2019 onwards till 2023 of all the questions chapter wise that have come in IFO exam. So do have a look at those as well. और अगर आपको करने हैं मतलब because there are a lot of changes in CM2, तो जो भी आप पुराने questions कर रहे हो, इनफैक्ट 2022 2023 से भी जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, एक बार उनको डबल चेक कर लो बिफोर डूइंग दैट वेदर दिस इज इन कोर्स और नॉट. और कैसे आपको डबल चेक करना है, आई हैव टोल्ड इन ओरिएंटेशन की क्या क्या चेंजेस है, और हर चैप्टर की क्लास में भी मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या क्या चेंजेस है. तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और यूटिलिटी थ्योरी में एज सच कोई चेंज नहीं है. इट्स एज इट इज, जैसा भी अभी एमएच और यूटिलिटी पहले होता था. स्टोकेस्टिक डोमिनेंस वाला चैप्टर रिमूव हुआ है, बट यूटिलिटी थ्योरी में कोई भी चेंज नहीं है. तो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईएमएच एंड यूटिलिटी थ्योरी. एंड पहले आपका फोकस होना चाहिए कि डू क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 onwards, and once you feel you are done with these questions and you want to practice more questions, then only pick up last 2017 onwards. Otherwise 2012 से करने की अब नीड नहीं है आपको. ठीक है, so let's start with our first question of the day. So question says, state with reasons whether each of the following scenarios are examples of evidence for or against efficient market hypothesis. आपके सामने scenarios हैं और आपको बताना है कि whether this is example for EMH or this is an example against EMH. So stock price still moving in response to public's earnings announcement that was made 3 months ago. Performance of an actively managed index fund is same as a passive fund tracking the same index. Volatility of share is greater than that implied by a discounted cash flow model. Two equity analysts at different firms have determined target prices for the stock of a specific company and the target prices are different. Both have access to the same information. तो आपको ईएमएच की थ्योरी पता है, आपको ईएमएच के अपने क्वेश्चंस भी पता है कि कब ईएमएच सपोर्ट होता है, कब नहीं हो रहा. उनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. इसके साथ साथ नेक्स्ट टू पार्ट्स आर सेइंग गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिनेरियो दैट डेमोंस्ट्रेट सेमी स्ट्रांग फ्रॉम ईएमएच. योर एग्जांपल शुड बी डिफरेंट टू दोस इन पार्ट 1. एक्सप्लेन हाउ योर सिनेरियो इन पार्ट 2 डेमोंस्ट्रेट सेमी स्ट्रांग फ्रॉम ईएमएच. एक एग्जांपल बताना है आपको सेमी स्ट्रांग, और वो बताना है कि वो कैसे ईएमएच सेमी स्ट्रांग फॉर्म डेमोंस्ट्रेट कर रहा है. So 7 marks question, 5 minutes time. I'm giving you 5 minutes time to attempt and then we will start discussing. It's an application based question. You will not get anything from the core reading directly. अगर आपका EMH के तीनों फॉर्म्स आपको क्लियर है तो दिस कैन बी एन इजी क्वेश्चन फॉर यू. लेकिन अगर आपको EMH का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है या फिर आपने वीडियो नहीं देखी है EMH वाली, तो दिस क्वेश्चन इज यूजलेस फॉर यू. आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसमें. So 3 to 4 more minutes.
2 more minutes to wrap up. Once you are done, start submitting your answer in the chat section. Guys, answers in the chat section. Let's start discussing. Very good question. Completely testing your EMH application. तो देखो question क्या कह रहा है? State with reasons whether each of the following are examples for or against EMH. देखो बहुत ध्यान से देखना if you're still unclear. A stock price is still moving in response to public announcement that was made 3 months ago. EMH क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH, वीक फॉर्म EMH. स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहता है कि चाहे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, चाहे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हो, या फिर चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, तीनों में से आप जो मर्जी कर लो, यू कैन नॉट अर्न एक्स्ट्रा रिटर्न. सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या कहता है कि टेक्निकल एनालिसिस और पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से आप एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमा सकते, लेकिन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज करके आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो. और वीक फॉर्म कहता है टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आप एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमा सकते, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से यू कैन अर्न एक्स्ट्रा रिटर्न. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज अ स्टॉक प्राइस इज स्टिल मूविंग in response to a public earning announcement that was made 3 months ago. तो कोई अनाउंसमेंट पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की कोई अनाउंसमेंट हुई थी 3 महीने पहले और स्टॉक प्राइस अभी भी मूव करी जा रहा है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनएफिशिएंट ईएमएच. बिकॉज अगर तो ये परफेक्ट ईएमएच होता तो आपका स्टॉक प्राइस में सारी चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो स्टॉक प्राइस चेंज होना ही नहीं चाहिए था. तो दिस इज अगेंस्ट ईएमएच. नेक्स्ट देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड इज सेम एज अ पैसिव फंड ट्रैकिंग द सेम इंडेक्स. कि मतलब चाहे एक्टिव मैनेजर हो चाहे पैसिव मैनेजर हो, दोनों सेम रिटर्न ही कमा पा रहे. तो ये तो ईएमएच है. स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच है कि यूजिंग सेम इंफॉर्मेशन all market participants are actually able to achieve the same return. So access to insider information or publicly available information or technical analysis may not help you to earn high return. So this is for EMH. Next देखो, volatility of a share is greater than that implied by a discounted cash flow model. आपने मॉडल में प्रोजेक्शन करी इतनी वॉलेटिलिटी आनी चाहिए, लेकिन आपकी वॉलेटिलिटी, आपका एक्चुअल शेयर प्राइस की जो प्राइसेस है वो मॉडल से डिफरेंट जा रही है. तो अगेन इफ दे आर गोइंग डिफरेंट, दैट मींस जो चीजें हमने इंक्लूड करे थे उससे आप एक्स्ट्रा रिटर्न कुछ ना कुछ चेंज कर पा रहे हो, तभी तो प्राइसेस उससे डिफरेंट जा रही है. तो अगेन अगेंस्ट ईएमएच. Next देखो, two equity analysts at different firms have determined target prices for the stock of a specific company. Target prices दोनों के different आ रहे हैं जबकि दोनों के पास same information है. इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी information है that one is able to earn high return and the other is not able to earn return. So again against EMH. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट दोनों पार्ट इंटर रिलेटेड, आपको बेसिकली समझाना है, एक एग्जांपल लेना और उसको समझाना है. कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिनेरियो दैट डेमोंस्ट्रेट्स सेमी स्ट्रांग फॉर्म ईएमएच. एक्सप्लेन हाउ योर सिनेरियो गिवन डेमोंस्ट्रेट्स सेमी स्ट्रांग फॉर्म. तो मैंने क्या बोला, सेमी स्ट्रांग फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अर्न करके कुछ रिटर्न नहीं अर्न कर सकते, लेकिन आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन से एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हो. तो मान लो मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ,
ठीक है, मुझे ऐसा पता लगा है कि कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर, कंपनी ए इज गोइंग टू एक्वायर कंपनी बी, and as a result of acquisition of company B, prices of company A are going to rise in near future. तो मैंने आज ही पूरे वाले शेयर्स खरीद लिए. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच, कि आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हो, तो दैट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच. So your market prices incorporate all publicly available information, but it does not incorporate information which is only available to insiders. So जिनके पास insider information है, they can exploit this to produce excess performance. So मेरे पास insider information थी upcoming acquisition की, मैंने public announcement होने से पहले अगर stock खरीद लिया, public announcement हो गई तो वो information already reflect हो गई, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट होने से पहले मैंने वो स्टॉक खरीद लिया, तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच. सो गाइस, एनी डाउट्स? दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन. अभी लास्ट के 2-3 बार से ईएमएच के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बट दिस वाज टेस्टेड इन सितंबर 2023 ओनली. बहुत टाइम बाद उन्होंने ईएमएच का कोई क्वेश्चन टेस्ट किया था. तो अगर ईएमएच का क्वेश्चन आता है तो वेटेज इतनी रहती है हमारी, 7 to 8 मार्क्स की वेटेज रहेगी, और वो आपके पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं. तुक्का नहीं लगा सकते आप, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को. अगर आप सेम इंफॉर्मेशन से रिटर्न कमा पा रहे हो तो ईएमएच नहीं है, इट्स अगेंस्ट ईएमएच. अगर आप सब कुछ कर रहे हो, चाहे आप एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हो चाहे पैसिव मैनेजमेंट कर रहे हो, दोनों के रिटर्न सेम जा रहे हैं, इट्स ईएमएच. So you have to see what the question or background is saying you, and then you have to apply your concept of EMH and apply it there. So is this clear to everyone? Any doubts in this question? Let's move to next question now. Nine marks question. 10 minutes time, start attempting. Again, a good question based on knowledge. It's not a high order skill question, it's a good question based on knowledge.
5 more minutes. 9 marks. एक तरीके से आपको बहुत easy question के वो 9 marks दे रहा है. If you know the concepts well, if you understand the question well, if you go through each of the given information, you can do this question very easily. Okay guys, let's start discussing. देखो आपको एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ वन कांस्टेंट एंड डब्ल्यू, और डब्ल्यू के लिए ना आपको गिवन है कि डब्ल्यू इज बेसिकली वेल्थ, और ये वेल्थ ऑलरेडी वो 000 में आपको बोल रहा है कि जब आप यहाँ पर डालोगे वैल्यू तो वो आपकी 000 हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है. तो जबकि करंट वेल्थ आपको 8000 है, तो आप वहाँ पे 8000 नहीं पुट करोगे, आप 8 पुट करोगे. करंट यूटिलिटी मतलब यूडब्ल्यू की वैल्यू उसने आपको निकाल के दी हुई है, आपको बस ये बताना है कि कांस्टेंट की वैल्यू 0.01 है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कांस्टेंट की वैल्यू 0.01 लेकर यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो अगर तो 2.1 आ रही है तो दैट मींस इट इज जस्टिफाइंग द वैल्यू. सो जस्ट लेट्स जस्ट क्विकली सॉल्व इट. So on solving you will get 2.10. So hence we can take the value of this as 0.01 just for 1 mark. कुछ भी नहीं करना था, बस उसको यूटिलिटी फंक्शन में डालना है. एक क्या चाहिए था,
और दूसरा ये था कि सिंस W is already representing values in triple zeros and if current level of wealth is given to you as 8,000, you're supposed to put only 8 here. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. Next part says show that UW exhibits declining absolute risk aversion and constant relative risk aversion. Now, if I ask you, when do we have a declining absolute risk aversion? Quick question to every one of you. AW, A dash W, RW, R dash W. So, when do we have declining absolute risk aversion? When A dash W is less than 0, basically, it shows declining absolute risk aversion. Constant relative risk aversion कब होगा? When R dash W is equal to 0. तो हमारा क्या है, हम इसके अंदर अब आप AW निकालो, RW निकालो, A dash W निकालो, R dash W निकालो. So just quickly solve for it based on the formula. So guys, I have not done anything. जो भी हमने ऊपर अभी बस डिस्कस किया, A dash W should be less than 0. तो I have just proved कि how A dash W is less than 0 and R dash W should be equal to 0. If yes, then they are displaying constant relative risk aversion, declining absolute risk aversion. U dash W, U double dash W, AW, A dash W, RW, R dash W. So again an easy section. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. देखो, individual has been offered a ticket to enter a lottery with a win in 10,000 chance to win 1 million. Calculate to the nearest dollar the maximum price P that the individual would pay for the ticket. अब हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो करंट वेल्थ आ रही है वो कितनी है? 2.1012. जब ये एक तरीके से हम गैम्बल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी हम गैम्बल में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हमें कोई प्राइस निकालने के लिए वो बोलेगा, तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विदाउट गैम्बल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विद गैम्बल. विदाउट गैम्बल कितनी आ रही है? 2.1012. नाउ लेट्स कैलकुलेट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विद गैम्बल इन टर्म्स ऑफ पी. तो अगर तो वो लॉटरी में इन्वेस्ट करता है तो 1 into 10,000 चांस है कि वो 1 मिलियन अर्न हो जाएगा. तो 1 मिलियन को अगर मैं थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट करूं, बिकॉज वेल्थ थाउजेंड्स में है, तो 8,000 वेल्थ थी मेरे पास, पी मैंने प्राइस पे किया उसका, प्लस 1 मिलियन आ रहा है, तो मतलब मैं यहाँ पर 1,000 लिख सकती हूँ. ये एक मेरी वेल्थ होगी एक तरीके से, प्लस दिस into U8 minus P. So this is my expected utility with gamble. Now this has to be equal to 2.1012. Now you are already know कि आपको utility का function given है. So use this function, calculate your value of P.
So put all these figures in the above equation and get your P. अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पर आपको बस ये जज करना है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ये पहले आपका CT7 का पार्ट होता था, बट चेंजेस के बाद दिस इज कम टू CM2. तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विद गैम्बल मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विदाउट गैम्बल. विदाउट गैम्बल इज योर करंट लेवल ऑफ यूटिलिटी. विद गैम्बल प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करके चेक करो. सो 1/10,000 चांसेस है कि आप 1000 पे अर्न कर लोगे, और 4 times 9 चांसेस है कि आप कुछ भी अर्न नहीं करोगे. तो put it in the equation and get your values. अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं. Discuss why this form of utility function would be inconsistent with common utility theory. तो अगर हम यहाँ पर गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि अगर हम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 कर देंगे तो why it will become inconsistent. अगर हम कांस्टेंट 1 कर देंगे, सॉरी ग्रेटर देन 1 कर देंगे, तो देखो दिक्कत क्या आएगी. आपका जो u डबल डैश w है that will become greater than 0. अब अगर u डबल डैश w ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो वेयर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वो तो ओबे ही नहीं होएगा. सो प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ विल नॉट बी सेटिस्फाइड. और वो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जो हम हमेशा कंसिडर करते हैं. और अगर ये प्रिंसिपल आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं सेटिस्फाई होएगा, इसका मतलब पर्सन क्या है, रिस्क सीकिंग रादर देन रिस्क एवर्स. और नॉर्मल यूटिलिटी फंक्शंस, चाहे हम कॉमन यूटिलिटी फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी एज्यूम इंडिविजुअल्स टू बी रिस्क एवर्स. तो अगर मेरा कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस मेरा ARA विल बिकम इंक्रीजिंग, and which we cannot expect for a risk averse utility function. तो इस टाइप के कमेंटिंग वाले क्वेश्चंस बहुत बार CM2 में पूछे जाते हैं, और यहीं पर आपकी CM2 की टेक्निक्स यूज होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड गेट अ होल्ड ओवर द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बिकम वेरी इजी फॉर यू. बट अगर आप एकदम से बिना कुछ पढ़ाई करे सिर्फ लाइव क्लास अटेंड करोगे, तो it will be of waste to you, because if you have not studied the concepts, you will not be able to get a hold over the questions. So this was not at all a difficult question, easy exam style question. So just note it down and we will move to next question. Again, a good question. 15 marks question, 10 to 12 minutes time, start attempting.
Guys, 5 more minutes to wrap up. We will discuss in next 5 minutes. Guys, let's start discussing. Okay, so let's see what the question says. Now, question is saying a singer has following utility function UW is equal to LNW. Show that this utility function is isoelastic. अब आपको पता है isoelastic means constant RRA. So let us just quickly calculate RRA for this function. UW is LNW. So hence we can clearly see it's a case of constant RRA. So बस इतना सा करने के basically आपको वो 3 marks दे रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. The singer measures their wealth as the present value of their future earnings. They are concerned about possible future damage to their voice and consider the following scenarios. Scenario is no damage, जिसकी probability 94.9 है और उसमें earnings कितनी आती है 15 लाख की. Slight damage, जिसकी probability 5 लाख से है तो आपको 2 लाख का नुकसान हो जाता है, 13 लाख earning आती है. सिवियर डैमेज जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है उसमें सीधा आपको 14,90,000 का नुकसान हो जाता है और इसमें आपकी अर्निंग्स आती है 10,000 की.
Singer is considering buying insurance to cover the loss of earnings if their voice is damaged. Insurance will pay a lump sum equal to a reduction in the present value of earnings compared to the no damage scenario. तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कैलकुलेट सिंगर्स एक्सपेक्टेड लॉस व्हेन कंपेयर टू नो डैमेज. तो नो डैमेज में उनकी अर्निंग्स कितनी है? 15 लाख की. अगर डैमेज होता है, चाहे वो स्लाइट डैमेज हो तो सिवियर डैमेज हो, तो लॉस कितना होता है? 5% प्रोबेबिलिटी है कि लॉस हो जाएगा 2 लाख और 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि लॉस हो जाएगा 14,90,000. तो एक्सपेक्टेड लॉस हम निकाल सकते हैं. So calculate your value. आपको इजीली इंस्टेंट, मतलब ये इंस्टेंट चीजें आनी चाहिए आपके माइंड में कि अच्छा देयर आस्किंग मी टू कैलकुलेट लॉस. तो लॉस क्या होएगा? हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग्स नहीं लेनी है, हमें लॉस लेना है कि मेरा 15 लाख वैल्यू थी, वो या तो 13 लाख हो जाएगा या फिर 10,000 हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट. अब ये सेम वही वाला पार्ट आ गया जो आपने पहले किया. कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रीमियम दैट द सिंगर वुड बी विलिंग टू पे फॉर दिस इंश्योरेंस बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी फंक्शन. तो अगेन हम क्या कहते हैं कि विदाउट इंश्योरेंस और विद इंश्योरेंस आपकी यूटिलिटी मैच करनी चाहिए. ठीक है, तो अगर तो वो इंश्योरेंस नहीं लेता वर्सेस अगर वो इंश्योरेंस लेता है. तो लेट्स मेक अ क्विक इक्वेशन फॉर दिस. सो 94.9% तो ये है कि उसकी यूटिलिटी 15 लाख रहेगी. 5% चांसेस है कि 13 लाख हो जाएगा और 0.1 चांसेस है कि 10,000 हो जाएगा. और इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर उसने इंश्योरेंस ले ली तो सिंपल वो फिर आपका सेम केस रहेगा. आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 15 लाख है कि 13 लाख है, आपको सिंपल वैल्यू मिलेगी W-P. तो use your utility function and get your value. So solve it and get your value. बस कैच आपका इक्वेशन बनाने का है. जब भी आपको मैक्सिमम प्राइस मैक्सिमम प्रीमियम निकालने के लिए कुछ भी बोले तो आप ये केस इंश्योर करो कि जिस चीज का वो प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है उसकी यूटिलिटी उसको लेने के बाद वर्सेस उसको लेने से पहले सेम रहनी चाहिए. नेक्स्ट पार्ट. Discuss briefly what your answers to part 2 and 3 suggest about the singer's appetite to risk. तो क्या आपको लग रहा है एपिटाइट टू रिस्क से? इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कैसे हम जज करेंगे कि रिस्क एवर्स है कि वो रिस्क लविंग है? अगर हम देखें तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, देखो 11,490 का, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में प्रीमियम कितना पे कर रही हूँ? 18,138. So can we say premium being paid is much higher than your expected loss, which means investor is risk averse. और moreover आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो भी आइसो इलास्टिक है, तो वैसे भी आपका जो RRA है वो कांस्टेंट है. So why is he buying, ready to buy insurance? He is risk averse. In order to reduce risk and increase certainty, he is ready to buy insurance. जबकि जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो सिर्फ 11,490 है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 18,000 प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी नहीं पसंद. क्लियरली केस है कि रिस्क एवर्स इंडिविजुअल है. इस तरीके से आप चेकिंग करते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो 2 नंबर 3 नंबर में आपको सिंपल ये ऊपर से बस देखने से ही आपको ये साफ साफ पता चल रहा है. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू कमेंट. द मोर द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कमेंटिंग, the better it will be application based and better you will be able to use your concepts and you will be able to segregate yourself from a non prepared student.
यूटिलिटी तक फिर भी चलो ठीक है, किसी ने यूटिलिटी फंक्शन को अच्छे से पढ़ के आया वो निकाल लेगा, एक्सपेक्टेड लॉस भी निकालेगा, प्रीमियम भी निकालेगा, लेकिन ये जो 8 नंबर का आपका कमेंटिंग का क्वेश्चन है बेसिकली ये आपको सेग्रीगेट करेगा नॉन प्रिपेयर्ड स्टूडेंट से। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई एन इंश्योरर मे नॉट वांट टू कवर दिस रिस्क। अब इंश्योरर क्यों नहीं करना जाएगा, अब इंश्योरेंस कंपनी किस चीज पर ऑपरेट करती है, देखो जो मेन रीजंस होता है इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का, वो पूल करते हैं रिस्क का। अब ये जो रिस्क है ये हाई सिवियरिटी रिस्क है, ऑल्दो चांसेस आर लो लेकिन सिवियरिटी बहुत ज्यादा हाई है। इट क्वाइट पॉसिबल कि इंश्योरेंस कंपनी के पास रिस्क पूल करने के लिए लोग ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि ये अनयूजुअल रिस्क है कि अच्छा गला खराब हो जाएगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। सो हो सकता है कि इन बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पूलिंग ऑफ लार्ज रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी इज डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू पूल विद अदर रिस्क बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल रिस्क व्हिच इज देयर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें चांसेस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन बहुत ज्यादा है, कि अगर उनको इंश्योरेंस चाहिए तो वो जान के अपने गला खराब भी तो कर सकते हैं, आप तेज तेज बोलना स्टार्ट कर तो गला खराब हो जाएगा जस्ट बिकॉज आप इवेंट नहीं करना चाहते और आपको इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तो रिस्क बहुत ज्यादा है इंश्योरेंस के पार्ट पे। और मोरल हजार्ड के भी चांसेस है, अगर आप अपने गले का ध्यान नहीं रख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हमें क्या पता कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, इतना मॉनिटरिंग नहीं कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो इफ द सिंगर इज टेकिंग लेस केयर ऑफ देयर हेल्थ, तो वो इंश्योरेंस लेने के बाद बिल्कुल ही निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम जो मर्जी खाए पिए, गला खराब होगा भी तो भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाए। तो इंश्योरेंस क्यों, इंश्योरेंस कंपनी ये वाला रिस्क कवर नहीं कर रही, ये अब आपका कहीं से भी CM2 से लिंक नहीं है, ये आपकी नॉर्मल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी पूल ऑफ रिस्क पे ऑपरेट करती है, हो सकता है उसके पास और कस्टमर्स नहीं है इस टाइप के रिस्क के लिए, या फिर ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल रिस्क है, मेरे पास कोई पास का डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं प्राइसिंग कर सकूं, मेरे पास कोई ये नहीं इन्फॉर्मेशन है कि जो प्रोबेबिलिटी हमने असेस करी है ये ठीक भी है या नहीं ठीक है, और चांसेस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड बहुत ज्यादा है। So any doubts in this question to any of you? So these are the typical exam style questions that you get from chapter 1 and 2. हो सकता है कोई भी question ना आए, चैप्टर 1 तो बहुत कम पूछा जाता है, चैप्टर 2 भी अगर पूछा जाएगा तो I have taken questions from recent past papers only. So these are the similar type of questions. CM2 में सबसे अच्छी चीज ही यही है कि if you get a hold over one or two style of past papers, you can get a hold over the entire chapter. So इस चैप्टर में से what you should be knowing is you should know how to calculate U dash W, U double dash W, AW, A dash W, RW, R dash W. Based on that increasing ARA कब होता है, declining ARA कब है, constant ARA कब है, increasing RRA, declining RRA, constant RRA कब है, plus at the same time isoelastic कैसे होता है, फिर बेस्ड ऑन दिस हम रिस्क एवर्स कैसे बोलेंगे, जब कस्टमर अपना रिस्क एवर्स कैसे होएगा, अगर उसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ होना चाहिए उसके लिए आपका U डबल डैश W लेस देन 0 होना चाहिए, अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा तो रिस्क एवर्स इंडिविजुअल नहीं रहेगा, वो रिस्क सीकिंग हो जाएगा, अगर डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन नहीं है, इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन है तो भी इंडिविजुअल रिस्क सीकिंग हो जाएगा। लेकिन जो हम यूटिलिटी फंक्शंस बनाते हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं कि कॉमन यूटिलिटी फंक्शन में आप इन्वेस्टर को रिस्क एवर्स अज्यूम करते हैं, और अगर वो रिस्क सीकिंग हो जाते हैं वो यूटिलिटी फंक्शन को हमारे ओबे नहीं करता। हो सकता है किसी चीज की आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू यू, या फिर यूटिलिटी विदाउट टेकिंग इंश्योरेंस यूटिलिटी, विद इंश्योरेंस यूटिलिटी, विदाउट एंटरिंग इनटू गैम्बल यूटिलिटी, विद एंटरिंग इनटू गैम्बल, यू शुड बी क्लियर विद दिस थिंग। ठीक है, so with this we wrap up the session. Thank you.